Hey guys, it's me Maya Faisal Khan And it's me Zareen Faisal Khan. and you're watching Sisters on the Go. Welcome back to our channel. So today we are going to be doing most asked questions session, like Q&A session with you guys, and I'm pretty much excited about it. What about you? I'm really excited. Like I have been waiting from the starting of our Day one when we started The YouTube, starting Zameen was yeah. thinking we will do this session we will one do this day. because we are waiting for the subscribers and followers to message us. So now this is the day that we're gonna finally do it. So that day came after 13 months. We should begin now. You should begin, okay. So पहले question जो है और बहुत ही मजे के क्वेश्चंस है जिनका कुछ के तो आपको जवाब भी नहीं पता होंगे कि हमारे क्या जवाब होंगे. Okay, so the first question is, what's one thing people always misunderstand about you? I will tell that I am older than Maya. मतलब मैं हमेशा लोगों को लगता है कि मैं बड़ी हूँ but मैं माया से छोटी हूँ. मतलब We have 2.5 years का almost difference. 3 तो 3 हो गया. Like I am 2007 born and she's 2010 10 born तो of September and of February. So that's like तो 2.5 अच्छा years. खासा गैप है. तो अब ये misunderstanding And Zamin always, get pissed off. So that's pretty much that. So that thing is clear. Zarveen का लोग ये misunderstand करते हैं. Now the thing that people mistook me as is like मैंने बहुत लोगों से सुना है ये कि जो मुझसे इसमें मिलते हैं, जो मुझसे फेस टू फेस मिल चुके हैं या कॉलेज लेवल पे जब मैं थी या स्कूल में. सो पीपल यूज टू थिंक दैट आई एम वेरी रूड, लाइक मैं बहुत ज़्यादा आई एम अ स्पॉइल्ड ब्रैट या ऐसा वाली चीज़. माया इज वेरी स्माइली और मैं इतनी स्माइली नहीं. मैं बहुत स्माइली बट आई डू नॉट नो व्हाई पीपल थॉट of me as someone who's very spoiled. Like I try to give comfort to people जितना मैं दे सकती हूँ, and this is not something किसी एक दो बंदे ने बोला. Like I got to hear this from 6 to 7 people that मैं बहुत वो rude लगती हूँ. I don't know, मैं rude, it's unequal. Okay, so the second question is कि what's your biggest green flag in a friend? मैं करूँ तुम बोलो. Okay, being honest. Honesty is the best policy. तो अगर एक अगर एक दोस्त में जो है ऑनेस्टी है तो आई थिंक बाकी सारी चीज़ें भी आराम से हो ही जाएंगी अगर ऑनेस्टी है तो. लॉयल्टी इज हमारे बैकबाइट ना करे, दैट इज समथिंग. लॉयल्टी इज द foremost, should be the foremost rule in friendship or in any kind of relationship you have with any people. And it's like you should have a friend. आप उन लोगों को दोस्त बोलें जिनको आपको पता है that they'll speak up for you in rooms where you are not present. तो ऐसे लोगों से आपने दोस्ती करनी चाहिए. Okay, now the third question is, what will you be doing after MD CAT? Okay, this is one of the most asked question, and ये अगर ये क्वेश्चन होता तो रिपीट हो रहा होता, लेकिन ये obviously so people are like literally obsessed with me what I'll be doing after MD CAT. So now that the MD CAT is over, so मैंने पहले बताया था कि I won't be taking gap year. मैं gap year नहीं लूँगी, ना मैं किसी applied sciences की तरफ जाऊँगी, like medical से related कोई फील्ड नहीं. मुझे MD CAT में मैंने MD CAT क्लियर कर लिया था बट मेरी सीट सिक्योर नहीं कर पाई थी. मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं DPT डी फार्मेसी ये सब ले सकती हूँ, बट आई डू नॉट वांट टू गो उस साइड पर या कोई भी अप्लाइड साइंसेज में. सो आई विल बी कम्प्लीटली चेंजिंग माई फील्ड, जो कि आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड में लेना व्लॉग्स. अच्छा, तो व्हाट्स द हैबिट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस ईयर? व्हाट्स द हैबिट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस ईयर? Okay. It's that I overshare. I have this. वो एक मैंने रील भी देखी थी जिसमें था कि बात करने के लिए कुछ नहीं था, अपने सारे सीक्रेट्स बताती है. 5 मिनट की कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं और माया के साथ आप बैठ गए, माया के साथ थोड़ा सा हंस लिया. माया पता है मेरे साथ ये हुआ था और मैं माया यार क्या हो गया माया बस कर दो यार. The thing is that I always see good in people. मुझे लोगों का evil side नहीं दिखता. So it's just कि I trust people very easily. तो मेरे trust issues इस चीज़ में that I trust very easily. तो मैं कहती हैं कि लोगों के अंदर ये वाले trust issues ना माया वाले नहीं होने चाहिए कि माया हर किसी पर अंधा भरोसा कर लेती है. ठीक है. अब दूसरा है कि if you could describe yourself in 3 words, what would that be? तो मुझे करोगे या तुम खुद करोगे अपने आप को? Yourself. अच्छा, yourself. तो I am way too funny, like full vibe. Second, I am not expressive, like I don't show my emotions. I am happy. Like you hide the emotions from your humor. I hide my emotions. And third is कि I am funny और ये और ऐसी है.
And I'm very Three. responsible. I'm very responsible. That was very vague last वाला. Responsible तो मैं भी हूँ. मतलब वो तो तुम्हारे अंदर भी है ना, मेरे Yeah, okay, कुछ so लोगों में नहीं होती. मेरा भी मैंने बताया जस्ट आई एम वेरी ओवर शेयरिंग. मैं बहुत easily शेयर कर लेती हूँ हर चीज़ें. आई एम वेरी vulnerable. Like as fine. opposed to Zarmeen, मैं आराम से कोई भी मुझे कोई चीज़ इमोशनल लगेगी, आई विल क्राई. मुझे कुछ भी ऐसा होगा, आई विल शो. मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ एंड तभी नहीं होना चाहिए. आई एम व्हाट आई एम वेरी एम्पैथेटिक. अच्छा, what inspired you to start your YouTube channel? ओह, तुम जवाब दो कि मैं. तुम पहले स्टार्ट करो, मैं बीच में. ओके, सो द थिंग इज के यूट्यूब स्टार्ट करना वो इज़ लाइक ऐसा नहीं था कि हमने एक दिन बैठे और हमने बोला लेट्स स्टार्ट यूट्यूब. लेकिन It's ऐसे ही था, ऐसे ही था. ऐसा था, बट द थिंग इज दैट हम लोग हमेशा तो हमेशा से लाइक ना. बचपन से वी वुड हमारे पास कैमरा होता था, या तो कैमरा या तो फोन. We वी used वुड to टेक take the, एवरीवेयर एंड वी वुड बी जस्ट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. अगर हमें कभी हुआ सो वील जस्ट कंपाइल ऑल दोस वीडियोस एंड We वील used to, अपलोड देम. हाँ, we used to make them, मैं yeah. बट मेरा जो रोल होता था वो था फोटोग्राफर का, लाइक वीडियोग्राफर एंड वॉइस ओवर करने का. एंड जमीन वुड बी द एक्टर और जमीन हर चीज़ बोलती थी फाइन एक्शन. एक्टिंग. और मैं तुम कुछ जो बोला, मेरा नाम जर, तुम बोला आई रिमेंबर दिस यू वीडियो. आई से मेरा नाम जरमीन है और मैं 15 years old हूँ, ऐसे करके ना. हाय माय नेम इज जरमीन. यार वहाँ पे इंग्लिश करना है कि उर्दू करना है? तुम बता. उर्दू कर लेते हैं भी, सही है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरमीन है एंड आई एम फ्रॉम 10th. आई एम 15 years old. सही है. सही है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरमीन है. अच्छा मैं तुम 10 years की हो. 15. अच्छा बोला मेरे, सही है, बहुत हो गया. अच्छा, so the thing is that we started our YouTube 13 months ago, which was on 6th of October 2024. That was when we officially started YouTube. उससे पहले हम लोग सिर्फ ऐसी ड्राफ्ट वीडियोस बना के we would just draft them, गैलरी में होती थी. एंड हम लोग बताओ क्या कर रहे थे, व्हाट्स इन माई बैग, व्हाट्स ऑन माई फोन, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दैट, ये हमारे पूरा वीडियोस. पहले तो बहुत ज़्यादा इस टाइप की यूट्यूब पे वीडियोस भी आती थी. एक्टर्स यूज्ड टू डू दैट. तो वो अपना आपस में लगे रहते थे, सामने कैमरा रख देते थे और वी यूज्ड टू रिकॉर्ड. हम छोटे थे उस वक्त, पर हमको इतनी अकल भी नहीं थी, हम इतना मज़े में करते थे. फिर हमारे ये जो स्किल्स थे ना, ये यहाँ पर काम आए. Okay, now the next question is, who is Teti and what do you call him? Why do you call him that? Okay, so Teti is Long story, it's okay. a very long story. But make it short, please. Okay, so I'll tell this because this is what like मैंने initiate किया था. Okay, so क्योंकि मैं I was the first born. I am the first born. So Teti का नाम, Teti is my dad, like मेरे father हैं. सो उनका नाम है फैसल. ठीक है, सो एवरीवन वुड कॉल हिम फैसल. फैसल मम्मा वुड कॉल हिम फैसल. एवरीबडी, माई दादी, माई फुप्पोज, एवरीबडी वुड कॉल हिम फैसल. तो अब जब मैं, जो छोटा बच्चा होता है जो सुनता है वो वही करता है. तो मैं अब फैसल सो ऑब्वियसली आपको स्पीच प्रॉब्लम होती है ना, आप नहीं बोल सकते क्लियरली बचपन में. सो आई वुड कॉल हिम तेतल 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 एंड दैट फैतल होता है ये. तेत जरमीन मैंने जब बोलना शुरू किया होगा आई वुड बी मेरली 1 year old. 1 साल की होंगी मैं जब ये मैंने आई गेस वर्ड इंट्रोड्यूस किया होगा. और मेरा तो छोड़ दे, मैं तो नहीं, कौन से 3 साल से मैंने बोलना स्टार्ट किया था. तो तेतल एंड देन दैट तेतल turned into Teti. So I call my father Teti. He is my dad. पहले मुझे होता था यार किसी को समझ. Now the thing is कि सिर्फ हम चारों नहीं, लाइक अली सामा, मैं जरमीन, हम सिर्फ नहीं बोलते थे. हमारे कजन्स वगैरह, हमारे कजन्स, सम ऑफ माई खालास दे कॉल हिम तेती. लाइक अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे विन कॉल माई डैड तेती. लाइक व्हेन दे वांट टू रेफर टू हिम दे कॉल हिम तेती. अच्छा, तो व्हाट्स योर फेवरेट व्लॉग यू हैव एवर फिल्म्ड? तुम बता, पहले मैं बताती हूँ. अच्छा, सबसे बेस्ट जो है ना, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स को भी जो अच्छा लगता है और मुझे भी जो अच्छा लगता है, वो था saying yes for 24 hours, like to the daughters ना, like Teti saying yes for 24 hours and was amazing. It was hell. मतलब इतना अच्छा था क्योंकि हम उस पर थी कि नेल कलर, लाइक मुझे नहीं लगता कोई लाइक किसी के अब्बा नेल पॉलिश लगा सकता है, और वो भी घर में नहीं, मॉल में. और Teti ने, वो याद है, हमने कहा था स्ट्रेंजर के पास जाए और पिक्चर खिंचवाएं. Teti ने लिटरली खिंचवाई थी पिक्चर. और वो अंकल क्या हो गया, इनको अंकल को क्या हो गया. so the next question is, did you like school life better or college life? Okay, so जरमीन तो भी आंसर कर नहीं सकती कि स्कूल लाइफ इतनी बेस्ट जा रही है.
स्कूल लाइफ बेस्ट जा रही है, मतलब अभी तो तुमने कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना. बट स्कूल लाइफ वैसे भी बेस्ट होती है और सबको स्कूल लाइफ ही अच्छी लगती है, मैंने अगर जितना सुना है लोगों से. बट द थिंग अबाउट मी, लाइक हाँ मेरा भी यही है कि स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ बहुत डिफरेंस आ जाता है, लाइक आपकी थिंकिंग में एंड एवरीथिंग. बट आई मिस माई स्कूल लाइफ. सो या आई डू मिस माई स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट वॉज जस्ट the only word I would describe, and it was amazing, it was fun. और कॉलेज लाइफ was that आपका क्योंकि बोर्ड्स का प्रेशर भी होता है and all that, but I did 2 years तो for 2 years and I did enjoy in my college life, but nothing would compare my school life. Like college life में ये नहीं था कि बुरी लाइफ थी या कुछ ऐसा. I experienced some stuff which were you know first time वाली चीज़ें थी, but yeah मैं अपनी कॉलेज स्कूल लाइफ को you know it will be top tier. और आगे भी यही रहेगा. अच्छा, अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है, बट जहाँ तक मुझे पता है तैती इज ऑलवेज लाइक द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ इज द स्कूल लाइफ. तो तैती में बस ये बोलते हैं सरमी लिटरली कहते रहते हैं स्कूल में जाने के लिए, जब बिकॉज सरमी इज इन 10th नाउ, तो सरमी को तैती बोलते रहते हैं कि जस्ट यू नो लिव योर लाइफ नाउ. लिटरली बोलते हैं यार मजे करो, टाइम वापस नहीं आएगा. इनफैक्ट जब मैं सुबह स्कूल के लिए जा रही होती हूँ मुझे लिटरली एक रिमाइंडर देते हैं, जरमीन ये 10th क्लास है, अब इसको एंजॉय कर लो. क्योंकि मैं लाइक मतलब मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि नहीं रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और लिमिट्स में रह के. रहती भी यही सिखाते हैं, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. नहीं ऐसा कुछ भी सीन नहीं हो रहा है, इंसानों की तरह जीना चाहिए. Zarmeen is the co-curricular prefect, so Zarmeen you know is like rule abiding species स्कूल में, because obviously she has to abide by all the rules. अगर वो जाती है, अगर नहीं भी होती तो मैं रूल्स अबाइड करती हूँ. वेरी यू नो innocent child. She is like वो नहीं होती क्या बोलते हैं she could kill but is a cinnamon roll वाला जो ट्रेंड नहीं था. एकदम वो like could kill but is a cinnamon roll. I am like looks like cinnamon roll but could kill. अच्छा बता दो. Next question. Now the next question is that how do you manage your vlogging with your studies? फर्स्ट माया. मैं फर्स्ट है, तुम बोल रही हो मैं बोलूँ? तुम बोलो. मैं बोलूँ. अच्छा सो जो व्लॉगिंग और उसमें ऐसे होती नहीं, बिकॉज हम लोग जो व्लॉगिंग करते हैं जो वीडियोस बनाते हैं मोस्टली लाइक जो बाहर वाली वीडियोस होती हैं वो वीकेंड्स पे शूट होती हैं. बट जैसे हम ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये हम वीकडेज में भी कर लेते हैं अगर जब भी जैसे टाइम मिलता है. बट जो मेन जो हमारी बाहर वाली होती हैं दे आर बेसिकली शॉर्ट व्हेन वी आर लाइक ड्यूरिंग द वीकेंड्स. तो ऐसा जितना होता नहीं कि हम पूरा वीक पढ़ते हैं देन वीकेंड्स पे तो ऑब्वियसली आपको ब्रेक चाहिए होता है ना, यू नीड टू ब्रीथ. तो वो वाला सीन होता है. एंड द ओनली थिंग दैट वी डू इज़ लाइक वी ओनली शूट, वी ओनली लाइक वी आर द एक्टर्स, लाइक हम शूट करते हैं एंड बाकी सब चीज़ें इज़ नॉट डन बाय अस. लाइक जो एडिटिंग है अपलोडिंग है एवरीथिंग इट्स डन बाय मम्मा. शी इज़ लाइक आवर मैनेजर एंड लाइक मैनेजमेंट पूरी वो हमारी एडिटिंग टीम है, वो सारी एडिटिंग एवरीथिंग इज़ डन बाय मम्मा. वी डू नॉट डू दैट. एंड फर्स्ट थिंग हम लोग को पता होता है कि वी हैव टू डू दिस थिंग ऑन दिस डे, तो हम लोग पहले से अलाइन करके रखते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग को अब पता चला यार ये करना है तो अब पढ़ लेते हैं. हर चीज़ पहले से अलाइन करके रखते हैं, पहले से करके रखते हैं चीज़ें. और कॉन्सेप्ट तो वही होता है चीज़ों का, तो हम लोग पहले से करके रखते हैं. तो इसलिए मैनेज हो जाती है. जिन लोगों को लगता है कि दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती तो आई थिंक उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है. लेकिन हम लोग माशाल्लाह आराम से कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं. और अच्छा अब आई लास्ट के माई फेवरेट क्वेश्चन के व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन? माई फेवरेट कुजीन माइन इज देसी. देसी 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 में क्या? देसी में बिरयानी हो गई, बहुत सारी चीज़ें. मतलब मैं लिटरली आपको बताऊँ रमज़ान अभी आने वाले भी और ये वापस स्टार्ट होगा. अभी जो लास्ट लेटेस्ट रमज़ान थे उसमें मैंने बनाई थी मंदी, और मैंने मंदी कोई उस वक्त रोज़े में भी खाई थी, फिर मैंने रात के खाने में भी खाई थी और मैंने सहरी में भी खाई थी. और मम्मा ने कहा था कि मत खाइएगा क्योंकि उससे जो है ना लगेगा यू फील थर्स्टी आफ्टर ईटिंग राइस. बट ऑब्वियसली योगर्ट होती है तो वो खा ली और मुझे लिटरली फील भी नहीं होता. और मैंने खौसे तक खाए. खौसे इज़ नॉट अ देसी डिश आई थिंक. मैं सहरी में खौसे खाए थे. मैंने खौसे खाए. मैंने बहुत हैवी चीज़ें. मैं कहाँ थी? तुम सीरियल पर थी या मैं कोकोमो वाला जो सीरियल होता है लव मैं खाती या कोको लेकिन क्रंच. वो बहुत हैवी होता है कोकोमो. मतलब खौसे क्या है फिर? मेरा अपना स्टाइल है. बट या यू कैरी ऑन. व्हाट्स योर मुझे सुबह ना लाइक जो सहरी वाला टाइम होता है ये जो 7 बजे वाला टाइम आई कैन नॉट ईट एनीथिंग हैवी. लाइक द सीरियल वुड वर्क, ऐसा वाला सीन होता है. बाकी अब मुझसे पराठे हलवा पूरी, मुझे पराठे से ज़्यादा हलवा पूरी कोको क्रंच. बाकी मुझे कॉर्नफ्लेक्स समझ नहीं आता. मुझे कॉर्नफ्लेक्स नहीं अच्छा लगता है. फील वेरी मैं बस खा लेती हूँ उसको. मुझे कोको क्रंच या वो जो होते हैं कोकोमो वाले इट्स लाइक ओयो वाले भी अच्छे होते हैं.
ओरियो वाले भी हाँ बहुत अच्छे होते हैं. माई फेवरेट कुजीन इज आजकल वैसे तो मुझे बर्गर्स बहुत लाइक आई लव बर्गर्स लेकिन सबको बताया सही है आई एम लाइक लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे जो है ना आई एम क्रेजी फॉर इटालियन लाइक मैं इटालियन फूड के पीछे आई हैव गॉन क्रेजी. तो मैं वही जहाँ पे भी होता है आई गो फॉर दैट लाइक या पास्ता हो जाए या कुछ भी हो जाए आई वांट समथिंग इटालियन स्पेशली द अवन वाला जो वाला नहीं होता क्या बोलते हैं ब्रिक अवन वाला जो पिज़्ज़ा होते हैं दे लाइक बेस्ट. ओह दे आर सो गुड. वाओ बहुत अच्छा होता है. So now the next question is what's your makeup routine? Like how do you do your makeup? So the thing is कि मैं कोई ऐसा makeup नहीं करती. The only thing that I put is blush, highlighter, liquid highlighter, liner and lip combos, you know. Lip combos, that's it. I do not use any primer, I do not use any foundation, any concealer I do not use. क्योंकि if you do not need them then I don't think so आपको सिर्फ because of the sake of using makeup आप वो use करें. So आपकी जो skin है बहुत ज़्यादा you know उसको क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा chemicals के और क्या बोलते हैं इंटरैक्ट करवाने की यार मुझे वर्ड नहीं आ रहा लेकिन अपने फेस पे इतनी कोई केमिकल्स आने की क्या जरूरत है बिकॉज ऑब्वियसली फाउंडेशन में भी तो केमिकल्स होते ही है ना तो आप वो क्यों केमिकल तो फिर ब्लश में भी होते हैं सब. तो मैं वही कह रही हूँ आप एक्स्ट्रा केमिकल्स क्यों यूज़ करें अगर आपको ज़रूरत नहीं है. सो आई डू नॉट यूज़ एनी कंसीलर या कोई भी बेस वाला सीन कोई कॉम्पैक्ट वगैरह आई डू नॉट यूज़. आई जस्ट यूज़ ब्लश हाईलाइटर लाइनर ये जो आई कॉर्नर वाला हाईलाइटर होता है एंड देन लिप कॉम्बोज जो होते हैं दैट्स इट. लाइनर हो गया ना. लाइनर भी हो गया एंड मस्कारा डेफिनेटली मस्कारा. What's something small that instantly makes your day better? What's something small? Like a message or a reel from any of my friend if they're like checking up on me. It just और मम्मा जो रील्स दिखाती हैं they are so relatable मतलब इतनी मजे की होती है. मम्मा यार रील्स जो भेज रही होती है. You will be कि यार दिन बन गया हमारा. अच्छा. What's the most embarrassing thing that happened while filming? While filming? एम्बेरसमेंट तो नहीं लेकिन हम लोग लाइक मॉल में जब व्लॉगिंग कर रहे होते हैं लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको तो नहीं क्या हो रहा होता है कि ये क्या कर रही है ना. एक दो अंकल तो ऐसे ही देख रहे हैं उनको लगा सिर्फ हम व्लॉग्स देख सकते हैं ये नहीं देख सकते कि कोई व्लॉगिंग कैसे करता है. वो यूँ करके देख रहे हैं और मैंने अपनी जगह बदल ली. मैंने पागल हो गई इनकी आँखें अटक गई हवा लग गई इनकी आँखों को. सही है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस समवन हैज़ एवर गिवन यू. बताओ. बेस्ट एडवाइस समवन हैज़ गिवन मी. याद नहीं आ रही मुझे इसका आंसर. तुम्हें किसी ने आज तक कोई एडवाइस दी लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं आएगी. कहती मम्मा बहुत देते हैं ये मुझे याद नहीं आया. तुम बताओ मैं याद करती हूँ. Okay, so the best advice I got was that you know you should think more about yourself now instead of you know thinking about what other will think. And something was like something like this was like, I can't quote that properly because it is like way back, but yeah it was somewhat like this that I should start giving myself a little bit more time than you know just thinking about how I could please other people. तुम्हारे पास कोई तुम्हें किसी ने कोई एडवाइस यार बहुत एडवाइसेस दिए हैं मेरे साथ. मुझे लाइक एडवाइस तो नहीं एडवाइस ही कहेंगे एक तरीके एडवाइस लाइक यू नो ये सपोर्टेड मी उस टाइम पे भी. नो आई यूज टू लाइक आई एम वेरी गुड एट स्पोर्ट्स ना मतलब मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ काफ़ी. तो मैं लाइक अपने पहले वाले स्कूल में ना आई यूज टू हैव लाइक यूज टू विन फर्स्ट पोजीशन यूज टू हैव फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड सेकंड के नीचे तो मैं जाती नहीं थी. मुझे एक दफ़ा थर्ड आई थी. फ्लेक्स मार लिया अब आपने. मैं बता रही हूँ. उसके बाद फिर मेरा एक दफ़ा स्पोर्ट्स से हुआ उसमें मैं जो हूँ रेसिंग में भी थी और मैं और बहुत सी चीज़ों में थी. मैं एक रेसिंग में थी वो था वो 3 लेगेड रेस करके ना उसमें आपको पैर बांधना होता है दूसरे वाले के साथ और आपको भागना होता है. मैंने बांध के हम लोगों ने ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की थी और हम लोग जब भी रेसिंग कर रहे थे तो हम सेकेंड ही आए थे. लेकिन क्या हुआ स्पोर्ट्स डे वाले दिन मैंने उसको बोला कि यार तुम्हें ना कुछ भी नहीं देखना कोई साइड में किसी को कुछ भी हो रहा हम भागते रहेंगे अपना ठीक है. और वो लिटरली मेरे साथ इतना अच्छा उसने कोऑर्डिनेट किया हम भागे. मुझे याद है बहुत लैंकी सी तुमने लिटरली यू नो उसको गोद में उठा के पैर बंधा हुआ तुम्हारा ठीक है ना. हम भाग रहे थे और इतना भागे हमें था हम जीत जाएंगे. और एक बच्ची नीचे भी मेरे पाँव के नीचे भी आ गई थी लेकिन मैं रुकी नहीं थी क्योंकि हम लोग को ये बताया गया था कि आपने रुकना की मंजिल नहीं है आपकी कोई. ठीक है हम चलते गए और एंड में जो है ना कोई और जीत गया और मैं इतना रोई और मैं इतना वहाँ पे तमाशा किया. ये तुम्हें लाइफ ने लेसन दिया कि आप इंसानियत को मार के आप कभी जिंदगी में नहीं जीत सकते. अभी तुमने बोला मैं अगर उस बच्ची को उठाने में लग जाती तो
तो हारी तो फिर भी मैं अपनी बराबर वाले को क्या बोलती कि तुम्हारी वजह से तुम जीतना हारी ही फिर तो भी उस पे। एटलीस्ट तुम्हें ये गिल्ट नहीं होती। अच्छा लोग मेरे एडिट बना रहे होते सर दिल ले गई सर दिल ले गई यार। ऐसा वो कंपटीशन था और मैं छोटी थी सब 6th क्लास में अच्छा भाई कंपटीशन हो रहा था। अच्छा Edit नहीं बन रहा था। what's one thing that changed your perspective recently? पर्सपेक्टिव कि हर मंजुलिका बुरी नहीं होती। या बी सीरियस और जवाब दो। मैंने आपको बताया था कि what traits I have and it's like I am funny, तो मैं कभी You serious can be funny while being serious. कोई मंजुलिका बुरी नहीं होती। गाइस मैं यही बोलती हूँ। अब तुम बता दो। One thing that देखिए एक चीज़ ये है कि if you just keep pleasing people, one thing you should know is that you will never be able to please everybody in your life. आप हर किसी को बॉक्स वाला टीवी होता आप हर किसी को नहीं सेटिस्फाई कर सकते। सो द ओनली पीपल यू शुड केयर अबाउट और जिनके ओपिनियन मैटर करने चाहिए वो हैं आपका खुद का, आपकी फैमिली का, लाइक योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स एंड अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज हैं, आपको पता है कि वो जेन्युइन है, तो उनका ओपिनियन शुड ओनली मैटर। बाकी थर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा जो भी बोले यू शुडंट केयर अबाउट इट। वो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या करते हैं, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके सो वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज कि व्हाट आर योर गोल्स फॉर 2026 लाइक फॉर सिस्टर्स ऑन द गो, व्हाट आर योर गोल्स? Oh, Okay, so I think do hard work. That is the first. we have been doing hard work. We have been doing hard work, and we will be more consistent. More consistent. जितना है उससे डबल consistency we'll show. So, इससे ज़्यादा क्या कंसिस्टेंट होगी? but इससे ज़्यादा भी हो सकता है. नहीं, this is not the kind of goal I am planning for Sisters on the Go. Sisters on the go to. मैं सिस्टर्स ऑन द गो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सोच। लेवल ही और है, लेवल ही और है, लेवल ही और है। बट या यू गोना ट्राई टू यू नो इम्प्रूव आवर व्लॉगिंग स्टाइल, और क्योंकि obviously there's always room for improvement. Perfect in life, so अगर आप थोड़ा करके ट्राई करें तो I think वो आपको you can never be perfect. It is 99.99% jumps जो कहते हैं ना लाइफ बॉय के उसमें 99. यार मैं अकेले वीडियो में नहीं आना चाहती। अगर हम 99 अकेले वीडियो में क्या तो बोला 99.99% जर्म्स हटा देंगे, सो मुझे अकेले नहीं आना भी। अच्छा 1% जो होगा तुम खुद अपने आपको ह्यूमरस कहती हो और तुम खुद जोक्स नहीं लेते यार, क्या है? मैं बात करती हूँ सही, मुझे पता है मेरे बहुत ही यू नो कौन से। ओके गाइस, दैट्स इट, इज इट फॉर today's vlog. and today's session. मैं बोल लूँ माया का और मेरा चलता रहेगा। ये हमें ये करना चाहिए इम्प्रूव कि जब माया बोल रही हो तो मैं चुप रहो, और जब ये मैं चुप होती हूँ जब तुम बोलती हो, तुम नहीं चुप होती। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम इस किस्म की वीडियोस और बनाएं, इस टाइप की वीडियो Q&A वीडियोस, सो यू हैव टू कमेंट बिलो एंड जस्ट टेल मी के व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट इन दिस वीडियो। एंड सेकंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिस्टर्स ऑन द गो, डोंट forget to like and hit the bell icon. This is the longest you have spoken in the whole video. Bye guys.